Ladies and gentlemen, good day and welcome to Servotech Renewable Power Systems Limited Q2 FY’26 earnings call. As a reminder, all participant lines will be in listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raman Bhatia, Managing Director, Servotech Renewable Power Systems Limited. Thank you and over to you, sir. Thank you. Good afternoon, everyone, and a warm welcome to Servotech Renewable Power Systems Limited Q2 and H1 FY’25-26 earnings call. As I deeply appreciate your continued trust and engagement as we discussed our performance and outlook. The second quarter of FY’26 presented a period of moderation after a strong start to the year. Our Q2 performance reflected a temporary softness in revenue and profitability influenced by evolving many circumstances, which I will explain you at the later stage. Initially, I just want to describe the data. On a standalone basis, total revenue stood at 103 crore and round off in Q2 FY’26, while EBITDA came in at 9.74 crore. PAT for the quarter 2.27 crore on a consolidated level. Revenue stood at 107.66 crore with an EBITDA of 7.44 crore and PAT 39 lakh rupees. For the first half of FY’26, we reported consolidated revenue 244.82 lakhs and PAT 4.95 crore. These results reflect a year-on-year moderation, yet they underline our steady business fundamental and disciplined approach amidst broader market realignment. We have made some remarkable developments that will support and push our growth and revenue in the upcoming quarters and beyond. We have received multiple large-scale solar rooftop projects from the Indian Railway and state government agencies. We expanded internationally with the significant tie-up in Mauritius and inauguration of a new subsidiary in Dubai. We have tied up with Johai for indigenous manufacturing of battery energy storage system and expand in the BESS sector. We have improved our customer service and set up an AI automated warehouse in Sonipat to boost logistics and pan-India fast delivery operations. We have now appointed Mr. Sonu Sood as our brand ambassador with a purpose to reach into the depth of the market and expand business to the grassroots level for better profits and in the upcoming quarters. We are confident that Servotech's commitment to clean energy innovation and our proactive strategy roadmap will continue to deliver sustainable value for all the stakeholders in the quarters ahead. Thank you, and I look forward to sharing more on our performance and outlook as we proceed. Before going to answer the questions, I just want to come back on my mother language so that I just want to share you many things. ये एक बेसिक स्पीच है जो मैंने आपको दी और आपको एक जो डाटा आप लोगों से शेयर किया, ये वो डाटा है जो आप लोगों ने आफ्टर रिजल्ट देख लिया होगा. और इस अर्निंग कॉल पे आई जस्ट वांट टू शेयर यू ऑल ऑफ देम कि जो इस बार के जो रिजल्ट हैं वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उतने बेहतर नहीं है जो आप लोगों को ये फील दे कि कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है. और बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास होंगे जिनके जवाब भी मैं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास दो तरीके हैं. या तो मैं अपने दिल की बात अभी रखता और बेटर है कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं तो पहले उन सवालों को लेते हैं और उन सवालों के जवाब में हो सकता है मैं वो सारे जवाबों को दे पाऊं और अगर कोई रह जाएगा तो आई विल कवर अप आफ्टर दैट. सो वी कैन स्टार्ट टू टेक अ क्वेश्चन नाउ. थैंक यू. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we'll now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use headsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Akshay Singh, an individual investor. Please go ahead with the question, sir. Hi, Mr. Manju. Hello. Hi. Very good afternoon to all. Good afternoon.
Yeah, my question is this. You have partnered with the Mauritius-based Nova Energy Solution Limited. So I want to राइट? understand how you will proceed further in future for this collaboration. नहीं, मैं आपका सवाल ढंग से सुन नहीं पाया। अगर आप रिपीट करें तो बेहतर होगा मेरे लिए। Yes, yes, yes. जैसे कि मैंने न्यूज सुनी है कि सर्वोटेक में मॉरिशस बेस्ड कंपनी है एनोग्रा एनर्जी जी। सोल्यूशन, उसके साथ एक हम्म, डायरेक्ट किया है टू एक्सपेंड बिजनेस इन मॉरिशस. So may I know what will be next step for this collaboration? तो बड़ा स्टैंडर्ड सा है। इट इज नॉट अ टाई-अप, इट इज बेसिकली अपॉइंटेड अ डिस्ट्रीब्यूटर ओनली। तो ये वही मॉडल है जो हम नेशनल में हर रोज करते हैं और अपने 4000 रिटेलर के साथ कर रहे हैं। वैसे ही हमने अपना एक कॉन्टेक्ट पॉइंट स्टार्ट किया है जिसमें वी हैव अपॉइंटेड देम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड दे विल रीसेल अवर प्रोडक्ट एंड अगर वहां पर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिसमें हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो ही विल रिप्रेजेंट सर्वोटेक देयर। Okay, okay. Yeah, got it. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, just a gentle reminder, anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. We'll wait for a moment while the question queue assembles. Our next question comes from the line of Ansh Wadhwa, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon, Raman sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I had a question. What is the one thing you do better than every single one of your competitors? And why can't they copy it? तो पहली बात तो ये कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसको स्टडी करना हमारा काम है, लेकिन कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करना इज नॉट अ गुड थिंग। हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं एंड हम अपने ही बेंचमार्क को तोड़ने पे काम करते हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पीट करने उतरते हैं तो आप डिफोकस हो जाते हैं, जिसका कभी इरादा नहीं है और ऐसा हमने कभी नहीं किया। तो हम लोग हमेशा अपने आप की ही बेंचमार्किंग को बेटर करते हैं। उसके लिए मार्केट शेयर कितना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट को रिसर्च करके उस मार्केट में हम अपने शेयर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम उस पर काम करते हैं। दैट इज अ अप्रोच जिसको कह सकते हैं आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, नॉट अ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। Great, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Our next question comes from the line of Rakesh Yadav, an individual investor. Please go ahead, sir. मिस्टर भाटिया, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ। जैसा भी मैं जी देख पा रहा हूँ कि इंडियन ईवी इंडस्ट्री में एनर्जी स्टोरेज का काफी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करता हूँ जी तो सर्वोटेक कंपनी जो है एनर्जी स्टोरेज में क्या फ्यूचर देखती है और उसके लिए वो क्या कर रही है? सर, मैं इसमें दो चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए नई है, इसलिए आपने सवाल पूछा क्योंकि आप शायद अवेयर नहीं है इस बात को लेके। इंडिया में जब एनर्जी स्टोरेज का काम शुरू हुआ था वो साल था 2020-21 का, जब इंडिया ने एनर्जी स्टोरेज पे काम करना शुरू किया था। उस दौरान में दिल्ली में जो पहला एनर्जी स्टोरेज जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल करके गिफ्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट को, वो सर्वोटेक ने ही एग्जीक्यूट किया था शिवालिक में, साउथ दिल्ली, फॉर अ BSES। तो वो 0.5 मेगावाट का पहला एनर्जी स्टोरेज था जो हमने इंस्टॉल किया था, और ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड का मतलब इसमें एनर्जी स्टोरेज भी था, सोलर भी था एंड ग्रिड टाइप भी था, ग्रिड फिटिंग भी थी। दैट इज नंबर 1। इसके अलावा जब हम ईवी की बात करते हैं तो ईवी में भी जो पहला चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है विद द एनर्जी स्टोरेज, दैट वी हैव इंस्टॉल्ड इन अ हॉजकास विलेज। You can visit Hotchkiss Village parking and you will find Servotech installed the charging station along with the energy storage. तो हम इसमें काफी सीरियस हैं and we are working hard on that. थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन सर। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Our next question comes from the line of Harish Chandra Singh, an individual investor. Please go ahead, sir. थैंक यू। नमस्कार रमन जी। नमस्कार। हमारी प्रेजेंटेशन में मेंशन है हमारे पास डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा है और हमारा बजट क्या है साल का रिसर्च का।
हमारे पास जो R&D की टीम है उसमें लगभग 40 से 50 लोग हैं। दैट इज नंबर 1। बिटवीन 40 to 50 इंजीनियर्स एंड सीनियर इंजीनियर्स हैं इसमें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप पिछले टाइम को भी खोल के देखेंगे तो मल्टीपल IITs के साथ हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके चलते हैं और काफी सारे हमने पेटेंट्स भी इसमें अप्लाई किए हैं और कुछ पेटेंट्स हमें मिले हैं। और रही बात जहां तक बजट की, तो इसको लेके बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बैंकर्स या और भी जो लोग हैं वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हमें, क्योंकि हमें बहुत कम बजट में काम करने की आदत है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। बट यस, हम कोई भी काम जो 10 करोड़ में कोई कर सकता है, वी आर कैपेबल टू डू दैट प्रोजेक्ट इन लेस देन 1/3 और 1/4 कॉस्ट। तो इसीलिए जो काम 100 करोड़ में होना है वो काम हम 25 करोड़ में कर सकते हैं। एंड हम ऐसा करते आ रहे हैं और हमने काफी सारे, अगर हम बात करें तो EV चार्जर्स हमने इंडिया में सारे बनाए हैं और लॉन्च किए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अभी हम ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स को हमने इंडियनाइज कर दिया है अप टू 30 किलोवाट। हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हम आज की डेट में बना रहे हैं वो शायद इंडिया की टॉप 5 या 10 कंपनीज में से एक होंगी। वो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है। लिथियम बैटरी पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑनबोर्ड चार्जर्स पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो मैं अभी आपके साथ शायद बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट यू विल फाइंड फ्यू डिटेल्स सून। बट वी आर वेरी एग्रेसिव ऑन ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू नोएल। Thank you, sir. Our next question comes from the line of Amitabh Vatsya from Sadhan. Please go ahead. So, thank you, sir. Thanks for the opportunity. So, मेरा सवाल है with respect to the earlier version of the company, which was basically जो हम लोग पहले HPCL, UPCL के ऑर्डर पे हमारा बहुत डिपेंडेंस था। तो अभी अगर मैं देखूं, वो एक अर्ली फेज में जब HPCL, BPCL को भी EV चार्जर लगाना था, उनके एक टारगेट थे। तो अगर मैं इससे BPCL की बात करूं तो उनका टारगेट कुछ 7,000 EV चार्जर का लगाने का था। तो उसमें उनको वो लोग 6,500 पे पहुंच गए हैं पर देयर लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। तो अभी आपको उन तीनों से आपको क्या विजिबिलिटी दिखती है इन टर्म्स ऑफ EV चार्जर? और EV चार्जर में दूसरा सवाल मेरा ये है जो रिलेटेड ही है इसी बिजनेस से, कि इसमें आपने अभी तक जो इंस्टॉल किए हैं, और लेट्स टॉक अबाउट अगर लास्ट 6 मंथ्स में कितने फास्ट चार्जर इंस्टॉल हुए हैं DC चार्जर और कितने नॉर्मल चार्जर इंस्टॉल हुए हैं, और आगे इन दोनों में क्या डायरेक्शन हम एज्यूम करें गोइंग फॉरवर्ड? EV चार्जर की जो मार्केट है वो पिछले 4-6 महीने के अंदर काफी स्लम आया है, उसके अंदर काफी डाउन आया है। वो सभी के लिए है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी चेंज हुई है और उन्होंने अपनी जो सब्सिडीज थी हार्डवेयर पे वो सारी विड्रॉ कर ली है। अभी कोई सब्सिडी नहीं है, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट करीब करीब रुक रहे हैं। रही बात रेवेन्यूज की और दूसरी चीजों की, तो उसके लिए हम लोग काफी एग्रेसिव हो गए हैं सोलर के दूसरे प्रोडक्ट्स में। प्लस हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इस सब को लेके हमें सोलर में काफी सारी चीजों की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। प्लस EV में भी हम लोग बसेस के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, प्लस में कुछ एक्सपोर्ट, इस पे काफी फोकस कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा भी मार्केट खुलता है तो हम बहुत तेजी से काम कर पाएंगे। और तो हम लोग ये ऑयल एंड गैस सेक्टर से ऑर्डर पाइपलाइन एज्यूम नहीं करें गोइंग फॉरवर्ड? मतलब मेरा आंसर मुझे मिला नहीं है सवाल का। सब मेरे चाहने या ना चाहने से दुनिया नहीं चलेगी। जब उनके प्रोजेक्ट ही उन्होंने ड्रॉप कर दिए और अभी आगे कोई प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहे तो मैं उसका पार्ट नहीं बन सकता। ये सवाल मेरे लिए तब हो सकता है कि जब पता लगे कि 10,000 चार्जर लगे हैं और सर्वोटेक को एक भी ऑर्डर नहीं मिला, कोई और ले गया, तब तो ये सवाल मेरे लिए बनता है। अगर वहां पर मार्केट में वैक्यूम आ गया है और डिमांड ही खत्म हो गई है या वहां डिमांड नहीं है तो उसमें मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ भी? तो मुझे लाइन ऑफ एक्शन बदलना पड़ेगा ना। हाँ, यस टेल मी प्लीज। तो लाइकवाइज अदानी टोटल गैस के साथ भी आपका अरेंजमेंट था, वो भी दैट इज इन द सेम? अभी सर सारी कंपनीज ने, सभी कंपनीज ने सारे प्रोजेक्ट अभी होल्ड कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नए चार्जिंग स्टेशन अगर कोई आ रहे हैं तो सिर्फ उन लोगों के आ रहे हैं जो खुद CPO मॉडल में है, राइट। तो जो CPO मॉडल में उनको हम OEM में दे रहे हैं, व्हाइट लेबलिंग कर रहे हैं। प्लस हमारा जो अपना सर्वोटेक EV इंफ्रा है वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता चला जा रहा है, वो भी नए चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहा है। प्लस
जिन भी जगहों पर जो नई कंपनी, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी काम कर रही हैं, उन कंपनीज को हम बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। और लेकिन सर नया जो आपने लाइन एक चेंज है डायरेक्शनली, जो आप ऑन बोर्ड चार्जर की आप बात कर रहे हैं, पहले आप उसमें थे, ऑन बोर्ड में नहीं थे, तो ऑन बोर्ड में ओईएम के साथ आप किस हद तक, मतलब आप क्या मार्केट शेयर है और आगे आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि पहले ये मार्केट पहले से किसी और के पास था, आप ऑब्वियसली नए तो आपको उस मार्केट में चैलेंजर। घुस के अपना शेयर, हाँ उस मार्केट में घुस के शेयर बनाना पड़ेगा ना, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक रिक्शा चार्जर्स में भी हमने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें वहाँ बहुत बड़ी एक मार्केट दिख रही है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। टू व्हीलर की बहुत बड़ी मार्केट है, ऑनबोर्ड चार्जर की, उस पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर पे काम कर रहे हैं, टाइप 7 चार्जर पे काम कर रहे हैं, वो सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। तो उसके प्लस बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको। सर उसमें भी ओईएम के साथ आप जा रहे हैं, जैसे हीरो एसर इनके साथ आप काम कर रहे हाँ, तो हैं? वैसे तो आप जा नहीं सकते ना, वैसे मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को तो बेचना पड़ेगा, तो उनकी गाड़ियों के साथ बेचना पड़ेगा। उनका अपने तो कोई चार्जिंग स्टेशन आ नहीं रहे, तो गाड़ी में लगेंगे। जी जी जी। ओके ओके सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जी जी। Thank you, sir. Our next question comes from the line of Gaurav Thakur, an individual investor. Please go ahead with the question, sir. Sir, good afternoon, sir. बिल्कुल। सर एक्चुअली आज शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन आर अराउंड दैट ओनली कि आज काफी गिरा है मार्केट एंड जी सर्वोटेक के भी काफी गिरे हैं एंड एज एन जी। इन्वेस्टर मेरा मनी ऐसे नीचे जा रहा है एंड आई नो कि आपने इस बार प्रॉफिट हुए हैं बट दे आर सिग्निफिकेंटली लेस पिछले क्वार्टर से भी एंड पिछले ईयर के भी हम क्वार्टर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आर यू गाइस प्लानिंग एनीथिंग अभी आने वाले क्वार्टर में कि इन्वेस्टर को आप होल्ड करने के लिए, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि साइकिल की सेलिंग या फिर अभी मैं होल्ड करूँ तो मैं अगर मैं इस सवाल का इंतजार काफी देर से कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और आपने पूछा। मैं आपका शुभ नाम एक बार दोबारा पूछना चाहूंगा। गौरव ठाकुर। गौरव। गौरव, ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, और आपने, हालांकि सबके दिमाग में ये सवाल है, अगर ये सवाल नहीं होता तो शायद आज की मार्केट नहीं गिरती, क्योंकि ये सवाल का मतलब यही है कि अनसर्टेनिटी, दैट्स व्हाई ड्रॉप द प्राइस। ठीक है, और ये अनसर्टेनिटी जो है वो बड़ी जेन्युइन है किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में। लेकिन आज मैं इस अर्निंग कॉल के माध्यम से जितने भी लोग इस कॉल को अभी सुन रहे हैं या इसके बाद भी सुनेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि जो आज हम जहां खड़े हैं, और पिछले आपने क्वार्टर का जो रिजल्ट देखा है, जो दिखा है आपको और सभी इन्वेस्टर्स को भी कि ये काफी ड्रॉप हुआ है, ये उन लोगों के लिए नया हो सकता है जिन लोगों ने 2021 से सर्वोटेक को देखा है, क्योंकि 2021 से सर्वोटेक ने लगातार परफॉर्म किया है और लगातार हम बढ़ते चले गए हैं। और आज जो भी ड्रॉप दिख रहा है, वो ड्रॉप उनको ये लग रहा है कि क्योंकि वो एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, चार क्वार्टर से पीछे नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इसके मुकाबले तो हम गिर गए ना, दैट मीन परफॉर्मेंस गिरी है। तो मैं यहाँ पर इस कॉल पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वोटेक जो कंपनी बनी थी वो 2004 में बनी थी। अब 2004 से 2025 का जो सफर है वो 21 साल का सफर रहा है। इस 21 सालों में ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसा 3 या 4 बार हुआ है। अगर मैं बात करूं तो 2005-6 में कंपनी जो काम कर रही थी, वो 2-3 सालों में कंपनी 3 करोड़ के एवरेज रेवेन्यू पे अटकी हुई थी। लेकिन 3 करोड़ के रेवेन्यू को जैसे ही सर्वोटेक ने तोड़ा 2005-6 में, तो 2006 से लेकर 2012 तक, 2007 से 2012 तक 3 करोड़ से सर्वोटेक पहुंची 26.5 करोड़ के रेवेन्यू पे, यानी कि लगभग 780% की ग्रोथ इन 5 ईयर। अब जब वो ग्रोथ कर ली, तो उसके बाद सर्वोटेक दोबारा से 2012 से लेकर 2016 तक फंसा रहा उसी 40-50 करोड़ के रेवेन्यू के बीच में। उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे इससे बाहर निकलने में। 2017 में और 2017-18 में जब हम आईपीओ आया, और उसके बाद से जब हम आगे बढ़े, तो सर्वोटेक पहुंच गया लगभग 100 करोड़ पे। तो 50 करोड़ से 100 करोड़ का जम था फिर 2-3 सालों में। फिर 2017 से लेके 2020-21 तक हम लोग 90 और 100 करोड़ के बीच में फंसे रहे 3 साल तक। और 2021 ऑनवर्ड अगर हम बात करें, तो आज हम 675 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं लास्ट ईयर में इन कंसोलिडेट। तो दोबारा से लगभग 650% की ग्रोथ पिछले 5 सालों में। अब इसके पीछे
हम लोग भी बैठ के काम करते हैं, हम लोग भी रिव्यू करते हैं कि ऐसा क्या है। तो होता क्या है कि जब हम एक सर्टेन टाइम के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं तो उस एक्सटेंशन में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर अलाइनमेंट, माइंड शिफ्ट, प्रोडक्ट शिफ्टिंग, आफ्टर सेल सर्विस, इसके अंदर जितना भी गैप रहता है तो उस सबको ट्यून करने में आपको एक टाइम जाता है। तो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं तो पीछे बहुत सारे ऐसी चीजें अनप्लग हो जाती हैं जो आपको इनडायरेक्टली या तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू होते हैं या आपके लॉसेस बढ़ने शुरू होते हैं या आप कस्टमर को उस तरीके से केयर नहीं कर पा रहे होते हो। तो किसी बहुत बड़े समझदार व्यक्ति ने एक बार समझाया था कि 1 करोड़ से 5 करोड़ की एक जो लड़ाई है ना, वो अगर आप एक बार क्रॉस कर लो तो आप 25 करोड़ तक आराम से पहुंच जाते हो। जब आप 25 करोड़ को तोड़ दो, एक बार उस प्लेटो को तोड़ दो तो आप 100 तक आराम से पहुंच जाते हो। और वंस यू ब्रेक 100 देन यू रीच इजिली अप टू 500 एंड वंस यू ब्लॉक ब्रेक जस्ट 500 प्लूटो देन यू कैन रीच अप टू 2500 ग्रोथ। तो ये एक स्टेज है जहां पर अब हम आके रुके हैं और इस स्टेज पे हमारे को जो ग्रोथ करनी है वो सबसे पहली ग्रोथ ये करनी है कि अब हम यहाँ से बहुत बड़ा लीप कैसे ले सकते हैं और हम उसी पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सर्कमस्टांसिस ने भी हमें हिट दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ रुके हैं। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि हम चीजों को समझ रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, यानी कि वो कंसेंट है, वो क्लैरिटी है कि वो ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक हो गया और हमें लग रहा है कि हमारे रिजल्ट गिर गए। हमें पहले से ही पता है कि वो रिजल्ट गिरने थे। हमारे पास दो तरीके से, या तो हम रिजल्ट को संभाल लें या हम तैयारी कर लें। तो हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर भी आपको देखने के लिए बहुत बढ़िया ना मिले, लेकिन सर्वोटेक का भविष्य बहुत बढ़िया है, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी गारंटी एक और देता हूँ। एक और चीज मैं अक्सर देखता हूँ जिसमें सुनने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है, वो ये कहते हैं कि लगातार जो कंपनी की मैनेजमेंट है या जो प्रमोटर है उनकी शेयर होल्डिंग गिर रही है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि फ्रॉम डे वन जिस दिन मैंने ये कंपनी शुरू की थी उस दिन जो भी मेरी शेयर होल्डिंग, नॉट इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स मेरे थे, और जो नंबर ऑफ शेयर्स आज हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं। एक भी शेयर गिरा नहीं है, कम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपनी कहाँ जाएगी और मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा और मेरी टीम मेरे साथ इसको कहाँ लेके जाएगी। राइट। अगर कोई छोटा मोटा शेयर होल्डिंग बेची भी होगी तो वो तब बेची होगी जब और खरीदी थी उनमें से कोई बेच दिया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 2021 में जिस दिन कंपनी मेन बोर्ड पे लिस्ट हुई थी उस दिन सर्वोटेक में प्रोमोटर्स के जो भी शेयर थे उसमें एक भी शेयर सर्वोटेक में से कम नहीं हुआ है, बढ़ता चला गया है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं सबको लेके, और हमें कहाँ जाना है हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म 6 महीने चले, 3 क्वार्टर चले, मैक्सिमम 4 क्वार्टर चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत आगे चलेगा, क्योंकि कंपनी के प्लान बहुत बड़े हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, वैक्यूम बहुत बड़ा है। सिर्फ अपने शेयर को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, बहुत इजीली हो जाएगा, बट उसकी तैयारी में टाइम लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू रेस्ट एश्योर टू ऑल माई शेयर होल्डर्स दैट डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डेफिनेटली अचीव वट वी हैव थिंक प्रीवियसली। तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. Mr. Bhatia, there are no one in the queue. चलो, तो shall we close it now? I said give one closing remark. Sure. So, as there are no, okay, so there are two questions now. चलो, Shall we take the question? yeah, please. All right. Definitely you will take. Yeah. Next question comes from the line of Vivek Singh, an individual investor. Please go ahead, sir. सर नमस्कार, ग्रेट हियर फ्रॉम पूना। नमस्कार जी। सर हम ये देख रहे हैं कि अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने कुछ 6 सेक्शंस दिखाए हैं कि जैसे सोलर प्रोडक्ट है, ईवी चार्जिंग है, लिथियम आयन बैटरी है, एंड बैटरी एनर्जी सिस्टम एंड सर्वोटेक स्टेबलाइजर। तो एक तो ईवी चार्जिंग में आपने बताया कि भाई गवर्नमेंट का कुछ अभी फोकस नहीं है, सब्सिडी नहीं है, तो ये फॉर टाइमिंग ये एक चीजें हैं।
जी कंपनी का फोकस आगे ये जो है बाकी जैसे सोलर प्रोडक्ट है या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या सर्वोटेक स्टेबलाइजर, जी एक एक चीज को अगर देखें तो हमें इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो आजकल बड़े स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं टैम, ये तो बहुत ही बड़ा है। जी और ये इंडिया में नहीं, ये पूरा जहाँ दुबई जा रहे हैं मॉरिशस जा रहे हैं सब जगह ये है। बिल्कुल अग्रीड। अब ये है कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें क्या प्रोडक्शन है, क्या उसके कैपेक्स जा रहा है। एक बार आपने यूपी गवर्नमेंट के साथ में भी कुछ टाइप किया था, आई डोंट नो उसमें जी लैंड अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो हुआ। हमारी तैयारी क्या है सर कि बाकी जो हमारे एरियाज हैं, क्योंकि क्या है कि पॉलिसीज और गवर्नमेंट ये सब बदलते रहती है, बट एज ए कंपनी और एज ए इंडिविजुअल जहाँ से आपने स्टार्ट किया है एक इन्वर्टर से और यहाँ तक के कंपनी बिल्ड की है, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि भी ठीक है बाकी सारी चीजें डिफिकल्टीज आते रहेंगी। जो हमारी एरियाज हैं इतनी लार्ज हैं कि अगर हम उसमें एक भी स्केलेबल करें तो बहुत है, मतलब $100 बिलियन या कितना है उसका टाइम मुझे तो समझ भी नहीं आता, लेकिन बहुत बड़ी स्कोप है सर। तो इस पे कुछ हाँ आप जी कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल अगले कमल 5 साल 10 साल बिल्कुल। में हम अपनी कंपनी को कहाँ लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है इस क्वार्टर की या एक साल की, पाटिया साहब आपने बोला कि भी 25 करोड़ ब्रेक किया तो 100 करोड़, 100 करोड़ ब्रेक किया तो 500 करोड़। देखिए जो कंपनी के साथ में है और लंबे समय से और जो आपको सुन रहा है, आपका जी जो एफर्ट है या पूरी टीम का जो एफर्ट है वो बहुत जेन्युइन एफर्ट है। तो जी इसको एक क्वार्टर से या एक साल से अगर कोई जज करेगा तो वो कोई भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन ही नहीं पाएगा। और ये जी सब फील्डें बहुत डायनेमिक हैं, पहली जी बात इसको समझना चाहिए। और ये फील्ड बहुत डायनेमिक है और आप उस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि हमें अपडेट्स भी मिलते रहते हैं या आपके टीवी पे इंटरव्यूज आते रहते हैं या आपके ट्विटर हैंडल पे अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर इन सब चीजों से अगर कोई लड़खड़ा जाएगा तो वो तो फिर लंबी यात्रा नहीं चल पाएगा ना। जी। तो हाँ पहले जी, आपको सर बस इतनी। मैं इस पे आपको जवाब देता हूँ सर। पहली बात ये कि जो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए जितना एरिया है आज और जितनी हमने अभी इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट की है पिछले 6-8 महीने में भी, वो हमें कैपेसिटी देती है कि लास्ट ईयर के रेवेन्यू को 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दे। तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और इंफ्रा के लिए, राइट। यानी कि उसके बीच में कुछ एक्सपेंशन में कुछ खर्चा आ सकता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं और वो ऑलरेडी प्लान है, वो होता रहेगा। यानी कि हमें कोई रोक नहीं सकता। पहली बात इंफ्रा से हम नहीं रुक सकते। रही बात जहां तक प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट लाइन से भी कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है, बिकॉज वी हैव अ टेक्नोलॉजी, वी हैव अ प्रोडक्ट, वी हैव एवरीथिंग। प्रॉब्लम कहाँ है कि कुछ चीजें कई बार आपकी जब इकट्ठी आती हैं तो आपको प्लान करना होता है कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। तो वहां पर आपको प्रायोरिटी देनी होती है। तो हमारे लिए वो प्रायोरिटी, एज अ इन्वेस्टर की जो प्रायोरिटी होती है, वो सिर्फ 2-3 चीजें देखता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, यानी कि रेवेन्यू में, कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है और कंपनी कैश प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है। उसको 3 चीजें देखनी होती है। लेकिन कई बार एज अ एंटरप्रेन्योर ये प्रायोरिटी को टेम्परली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीछे करना होता है, क्योंकि इसके बैक में कई चीजें ऐसी होती हैं कि अगर वो टाइमली सॉल्व नहीं की गई तो आज तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखा दी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हम कहीं जाके फंस जाएंगे। तो आज हम उसी पे काम कर रहे हैं कि वो जो स्केलेबिलिटी है उसमें सिस्टम्स, प्रोसेसेस स्केलेबल करना। जैसे अभी हमने अपनी वेयर हाउसिंग अलग किया है पूरा का पूरा, उससे काफी सारा इम्पैक्ट आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जीएसटी के रिजीम के चेंज आने की वजह से बहुत सारी परचेजेस डिले हो गई, क्योंकि अगर किसी एंड यूजर ने भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वो कहता है मैं 12% टैक्स क्यों दूं अगर मुझे 5% मिलता है, या 18% क्यों दूं। तो इसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट आए, जिसकी वजह से टेम्परली ये डिले था। 4,000 रिटेलर है हिंदुस्तान में, और वो जो रेवेन्यू थे वो रेवेन्यू 10% रह गया, उसका डिप था। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए, बट कहीं से भी ये फील नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ऑर्डर इन हैंड, यानी कि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। मार्केट में कस्टमर्स काफी रिलाई करते हैं कंपनी के ऊपर। अभी आरईआई नोएडा में हम लोगों ने लगाया, जितने लोग भी मुझे पर्सनली भी वहां मिले, उन लोगों ने ये बोला कि सर आप प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, एवरीथिंग इज गुड, वी आर विद यू। तो बहुत मैं भी और लोगों से जाके मिला और सारे प्रोडक्ट देखे, तो ये फील आता है कि यस, वी आर ऑन राइट पाथ एंड विल डेफिनेटली अचीव व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड इन आवर माइंड एंड ऑन आवर पेपर।
So don't worry about that. Definitely we will achieve. सर मैं वरी नहीं करता, मैं तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो साफ साफ नजर आती है आपकी। नहीं सर, 110% करेंगे सर, बिल्कुल। यही मैं वही बोला, जो लंबे सफर का साथी रहेगा वही इसमें कामयाब होगा। छोटे मोटे झटके तो हमेशा हर बिजनेस में आते रहते हैं। सर ये अर्निंग कॉल है भी, पूरी हमारी तबियत सही नहीं रहती है, तो सर ये अर्निंग कॉल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग लॉन्ग टाइम चलना चाहते हैं, उन लोगों को बताने के लिए कि कंपनी क्या कर रही है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. So shall we conclude the call? Please. I just want to we thank all the participants for attending this earning call. We believe that we have satisfactorily run you through our company update and addressed every arising question thereon put on the floor by the participant. We continue to see growth in our broad product portfolio, and witness a strong momentum across our business support by R&D and other strategic initiatives. We remain focused on bringing new products, exploring new markets, and creating value for all our stakeholders. Please email us if you have any question, investors.relations@servotechindia.com, if you have any question which were not covered up in the session, and hope you have a great day ahead. Thank you once again. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, on behalf of Servotech Renewable Power System Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.